میں نے آخر میں آپ کے اوپر لانی ہے کہ اتنا ہوا التواس کیا ہے وہاں، اتنی بھرم بازیاں ہوئی نہیں، لوگ ڈرے بیٹھے ہیں۔ لاہور میں انگیب اب نام نہیں لیتا، لیکن کوئی جن کی آپ نے بات کی ہے بول رہی ہوئے لاہور پر کبھی نام لے یہ بول رہی ہوئے لاہور پر کبھی نام لے۔ کتنا برا لگ رہا ہے، نام لے لیں ان کا، کھا بھی رہا ہے، اور کتنا برا لگ رہا ہے۔ اس طرح کوئی مطلب یہ ویڈیو بناتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، نام لیں، اس کا نام لیں، یعنی کہ مفتی راشد صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جناب آپ کا تو ایک ہوا بنا ہوا ہے۔ جب مناظرے پر بات ہو رہی تھی تو سارے لوگ بھاگ رہے تھے، لاہور والی سرکار بھی بھاگ رہی تھی، یہ کہہ رہا نام لیں، اس کا نام لیں۔ جھوٹا آدمی ہے دونوں، یہ نا کہ آؤ بیٹھ کر جھوٹ بولیں، یہ وہ سلسلہ ہے ان کا، مل کر دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج ہم انہی کی پوڈ کاسٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، دونوں۔ مفتی راشد صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میں مرزا سے مناظرہ نہیں کروں گا، ان کی تو ویڈیوز ہیں کافی ساری کہ آؤ لے آؤ اس کو۔ اصل میں اویس ربانی نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا تھا، وہ نہیں گئے، تو اس نے اپنی دشمنی نکالی کہ جناب علی میں نے ان کو بلایا نہیں آئے، بات کہیں اور بدل دی۔ پھر آگے کہتا ہے کہ سید مشاہد حسین صاحب جناب علی وہ بھی بھاگ گئے، وہ کہتے ہیں کہ لاہور مرزا کو لے آئے، اور انہوں نے میری ریکارڈ کرنی چاہیے جو ہے نا وہ فون کال۔ مفتی مشاہد حسین سید صاحب کی ویڈیو آئی ہے، کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ جناب علی وہ میرے پاس آئیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، کہتے وہ ہمیں جب چاہیں جہاں بلائے ہم آئیں گے۔ تو یہاں بھی اویس ربانی نے جھوٹ بولا اور ساتھ میں مرزا نے جھوٹ بولا۔ اچھا وہ مشاہد حسین جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا، نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ، خود بچے کو بھیج کے اور یہ سارے کارروائی خود کروائی، کیونکہ اس نے خود 4-5 گھنٹے بچے کو وہاں بٹھایا اور ویڈیو بنوائی، جناب آپ نام لیں سید مشاہد حسین صاحب کا، اور وہی بچہ جب عدالت میں پیش ہوتا ہے کہتے ہیں میں تو جانتا نہیں سید مشاہد حسین صاحب کو، اور اسی ایف آئی آر میں میرا نام بھی ڈلوایا گیا، اور مفتی راشد صاحب کا بھی، مفتی سید مبشر حسین صاحب کا، ان چاروں مفتیان کرام کا نام اس میں ڈالا گیا کہ یہ لوگ اس لڑکے کو فنڈنگ کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں اور انہوں نے مجھ پر حملہ کرایا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا آدمی، غلط کسی پر ایف آئی آر کرانا کتنا بڑا جرم ہے، داڑھی پگڑی پہن کے جناب ہر اتوار کو آ کے بیٹھتا ہے، تو یہ کتنا کمینہ آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ انہوں نے اس لڑکے کو پیسے دیے، تیار کیا جناب علی مجھ پر حملہ کرنے کے لیے، ہم تو تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں علمی طور پر۔ تو آج بھی مفتیان کرام وہ حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ مفتی راشد صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ جناب آؤ بات کرو، نہیں مفتی منیب الرحمان صاحب وہ ان سے لکھوا کے آئے، ان کی ایما پر ہوگا، بھی انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں، وہ تو نام ہی نہیں لیتے، تو ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں اب مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں، اب باپا جانی سے لکھوا کے لیں، یعنی بہانے بھاگنے کی، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ سامنے بات کریں۔ تو یہ دونوں جھوٹے مل کے انہوں نے باتیں کی، اور ایک جھوٹے نے دوسرے کو جھوٹا بھی کیا۔ اس میں سے ایک یہ اویس ربانی نے کہا کہ جناب علی تم نے جب ہم آئے تھے تو تمہارے ابرار نے ہم سے بدتمیزی کی، تمہارے کیسے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ میرے ریپ نہیں تھے، کوئی اور تھے، بس یعنی جھوٹ پہ جھوٹ بولنا۔ اور پھر اس نے کہا جب ہم واپس گئے تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے استاد کے پاؤں چومے، مرزا جی تم نے ویڈیو بنائی کہ انہوں نے جناب علی سجدہ کیا، یہ تو غلط بات آپ نے کر دی، نہیں سجدہ تعظیم، پھر آگے سجدہ تعظیم پہ چلا گیا، سجدہ تعظیمی حرام ہے، حد رکوع تک جھکنا حرام ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حد رکوع تک جھکنا حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ قبروں کو وہاں نہیں جھکنا، اور ہاتھ چومنے کے لیے کب کہا اعلیٰ حضرت نے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے جا کے چوما ہے جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو چوما۔ کتنی چومنا، بس یہ ہے کہ آپ حد رکوع تک نہ جائیں، اور یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو چوما تھا، بس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے چوما ہوگا، کہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے وہاں آ کے پاؤں چومے، یہ کیسا، یعنی یہودی آ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول آپ منبر پر تشریف فرما ہو اور ہم آپ کے پاؤں چومنا چاہتے ہیں، ہے کوئی عقل والی بات؟ آخر انہوں نے پاؤں چومے، چلے ممبر بات مان لیتے ہیں، تو ممبر اتنا تو بڑا نہیں ہوتا، پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے بالکل، درمیان اتنا ممبر ہوتا ہے، تو مطلب وہ آپ علیہ السلام عرش پر بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے جا کے وہ پاؤں چومے، اور یعنی جھوٹ پہ جھوٹ۔ امام مسلم نے امام بخاری کو کہا کہ میں آپ کی پاؤں چومنا چاہتا ہوں، تو کیا مطلب، تو وہ امام بخاری کے پاؤں اٹھا کے پھر چومیں گے؟ ماں باپ کی بھی آپ نے پاؤں چومنے ہیں نا تو آپ ان کو اٹھائیں، یعنی کتنی بدتمیزی ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاؤں اٹھا کے ان کے چومے گا۔ بھائی وہاں آرام کر رہے ہوں گے چارپائی پہ، آپ نے کیا کرنا ہے،
पाँव चूमना, आपने झुकना भी है। तो इसको किसने शिरक कहा है? शिरक तब होगा कि कोई आदमी सजदे की नियत से और उनको खुदा मान के जो वो सजदा करे। जब सजदा ही नहीं है, चूमा है, आप अपने उस्ताद की जूती उठाने के लिए झुकते हैं तो झुके हैं, तो हद रुकू से ज्यादा झुके हैं, तो ये चूमना कैसे, ये सजदा कैसे हो गया, ये हराम कैसे हो गया? तो इसने झूठ बांधा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पर कि जनाब उन्होंने शिरक किया। किसी मुसलमान पर शिरक का फतवा लगाना कितना खतरनाक है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी को काफिर कहे और काफिर ने तो कुफर उसकी तरफ लौटेगा। तो यहाँ एक झूठे ने दूसरे झूठे को जलील किया और झूठा किया। फिर अवैस रब्बानी कहता है कि तुम तमाम फिरके को कहते हो कबर परस्त हैं, ये मुशरिक है, काफिर है, इस तरह की बातें क्यों करते हो? सारे तो इस तरह नहीं करते। नहीं, मैं सबको नहीं करता। झूठा आदमी सबको कहता है। अब इसकी वीडियो आई हुई है, बरेलवी उलमा भागना नहीं, आला हजरत के बार अकीदे, मुस्लिम अकीदा, बरेलवी अकीदा, तो आपने सबको कहा है। और ऐसी गंदगी फैलाई है उसमें कि आला हजरत का हवाला ही नहीं दिया। तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है और कश्फुल महजूब में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इमाम अबू हनीफा ने ख्वाब देखा। मुस्लिम अकीदा यह कि आप अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है, और बरेलवी अकीदा यह है कि इमाम अबू हनीफा ने ख्वाब देखा कि आप अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ जमा कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम अकीदा और बरेलवी अकीदा। तो अब क्या ये बताना चाह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बरेलवियों का ये अकीदा है कि आप अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा नहीं है? हालांकि हमारा अकीदा ये है कि आप अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है। और लिखा है कि आला हज़रत के बार अकीदे, तू वल्लाह जिंदा, तू वल्लाह जिंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये आला हज़रत कसम खुदा की उठा के कह रहे हैं कि तू जिंदा है। और उसी आला हज़रत के बारे में और बरेलवियों के बारे में कहता है कि जनाब इनका अकीदा एक नबी अलैहिस्सलाम वो मर की मिट्टी हो गए। हालांकि ख्वाब है, उसकी ताबीर लिखी हुई है। ख्वाब की ताबीर होती है, वो अकीदा नहीं होता। अगर आपने ख्वाब की ताबीर नहीं करनी तो आप ये कहेंगे फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नौज़ुबिल्लाह मुशरिकाना ख्वाब देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने चांद सितारों को देखा है कि मुझे सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह हज में के चांद सितारे तो मुझे सजदा करते हैं। तो नौज़ुबिल्लाह ये मुशरिकाना ख्वाब हुआ। इस तरह कमीना फिर ये कुरान के बारे में इस तरह की बात करेगा। उस ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि उनके जो है ना वो भाई उनको सजदा करेंगे। सूरह यूसुफ की सेकंड लास्ट रुकू में मौजूद है। तो इस तरह की बातें करके जनाब मुसलमानों पर फतवे लगाता। कहता नहीं मैं सब पर नहीं फतवे लगाता। तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है, कश्फुल महजूब में लिखा हुआ है। बरेलवियों का अकीदा, पूछ बरेलवी कब से? जनाब 1896 से पहले कोई बरेलवी दुनिया में था ही नहीं। उससे पहले अगर मुसलमान देखने तो हमें देख लें कि जी ये केड़ा वो देवबंद ओ एड़ा 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था। वो अली भाई ने बताया हुआ है। और अच्छा आप बरेलवी हैं, वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं था। आप वो वाले हैं, तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने हैं तो आप हमें देख लें, हमें देख लें। ये अगर हम इसको इल्जामी जवाब दें तो ये होगा कि तेरा अकीदा है। अगर तू कहता है गुस्ताख तू है, नहीं आप मानते हैं ना तज़किरतुल औलिया को, तो आपकी बाबा जी नहीं मानते मौलाना साहब? तो कहते हैं जनाब अली फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल औलिया में ये लिखते हैं। बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिसे बारे शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरतुल औलिया लिख दे। दो जवाब फिर। आपके बाबा जी का ये गुस्ताखाना अकीदा हुआ, फिर तुम कहते हो कि मैं उनका नाइब हूँ। तो एक गुस्ताख और काफिर का नाइब बनने वाला काफिर ही होगा ना, तो अपने फतवे से काफिर हुए। और ये जनाब अली मैं इनको दिखाऊंगा, इनके बड़े भी फिराडिया थे, नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है। कहता मेरे से ज्यादा बंदा नर्म है ही नहीं, मुझसे ज्यादा नरम बंदा इख्तिलाफी मौज़ूआत पे प्लेनेट अर्थ पे है ही नहीं है। मेरे से ज्यादा नरम बंदा है ही नहीं। कमीन की इसकी एक लेवल तक जाती है। यहाँ कह रहा है जनाब अली तुम भी फिराडी हो, तुम्हारे बड़े भी फिराडी थे। मुसलमानों का यह अकीदा है कि अंबिया इकराम के अजसाम कब्रों में सलामत है। अब बरेलवी अकीदा क्या है? अब मैं जैसे ही बोलूंगा बरेलवी कहने ऐसे भी कहने ना तानू मजीद मजे नहीं मैं करन देने। बड़ा तमाशा लाया, ड्रामा लाया तुसी जनाब हुर्मत रसूल दे नां दे उत्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्रॉड करते रहो, तुम्हारे बड़े भी फ्रॉड ही सब। ये देखें इनका अकीदा कश्फुल महजूब में भी लिखा हुआ है और तज़किरतुल औलिया में भी लिखा हुआ है कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा कि वो रसूलुल्लाह की कब्र में उतरे हैं और आपकी हड्डियां जमा कर रहे हैं और बाज को बाज से अलग कर रहे हैं। ये कि तुमने ये लिखा है भाई, ये तो इमाम ज़ाबी ने लिखा है सीर आलामिन नोबला जिल्द 5 सफ़र नंबर 535 पे ये ख्वाब वहाँ लिखा है। इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब अल इंतिका, उन्होंने ये 3 सनदों के साथ ये वाक़या लिखा है। तो वो फिराडी थे। तुमने फिराड किया हुआ है हुर्मत रसूल पर। इतना बड़ा खुद फिराडी है कि पिछले 12 सालों की इसकी वीडियोस देखें, कहेंगे जनाब अली अगर इश्क रसूल देखना है तो आप बरेलवियों में देख लें। अगर मैं इश्क रसूल की बात करता हूँ, अगर मुझे कोई बरेलवी कहते मैं कहूँगा हाँ मैं बरेलवी हूँ। अहले बैत की मोहब्बत का मैं 10 देता हूँ, अगर मुझे कोई शिया कहे तो मैं कहूँगा हाँ मैं शिया हूँ। तो 12 साल आप ये कहते रहे, अब तुम्हारा पैंतरा बदला क्योंकि अहले सुन्नत बरेलवियों ने तेरे ऊपर FIR करवाई, तो जनाब अली क्या हो गए, बदल गए। भाई भी हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि द ओनली रीजन यही है। मैं जहां जहां जेल में रहा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने स्टाफ के लोग थे, ऑफिसर थे,
सब के सब मुझे खुद कहते थे कि आपका असल जो अहले बैत का दिफा है। जनाब अली, मैं जो कैद मैंने काटी है ना, अहले बैत की मोहब्बत में काटी है। पूरी दुनिया को पता है कि इसने नबी इस्लाम की गुस्ताखी की और ये इस पर FIR हुई और ये जलील और रुसवा हुआ। नहीं, मैं अहले बैत की मोहब्बत में तो काटने वाले यानी FIR दर्ज करवाने वाले कौन थे? अहले सुन्नत बरेलवी। वो तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो अहले बैत के बुग़्ज़ में किसने आपके ऊपर FIR करवाई? और इसी वीडियो में कहता है कि जनाब मैं जब कैद में गया तो वहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले अहले हदीस देवबंदी वो अहले बैत का जिक्र सुन के खुश होते थे। अगर वो शिया और बरेलवी होते फिर तो हम समझते कि नहीं, कोई बात नहीं है। बंदी कट्टर सबाए साहबा लश्कर जंगली वाले अपना तारुफ करवा रहे हैं जी, कट्टर देवबंदी हैं, लेकिन अहले बैत में आपके साथ खड़े हैं, हम देवबंदियों के साथ नहीं खड़े। यार अगर कोई बरेलवी या शिया आके मुझे कहे ना तो मेरे लिए ऑकवर्ड ना होता। नहीं, शिया और बरेली जो है ये अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनके सामने अगर अहले बैत का जिक्र किया जाए तो वैसे खुश होते हैं। तो ये तो अहले हदीस और देवबंदी खुश हो रहे थे। तो ये वाज़ेह कह रहा है कि शिया और बरेली जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं अहले बैत की वजह से मैं जो है वो कैद में गया हूँ। भाई अहले सुन्नत जो है वो तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो अहले बैत का तुम जिक्र करते होते, हालांकि तुम तो गुस्ताख हो अहले बैत के। मान ले अगर तुम अहले बैत के इतना जिक्र करते हो तो फिर अहले सुन्नत तो तुम पर FIR ना करवाते ना। FIR अगर करानी होती तो तुम्हें अहले हदीस तुम पर FIR कराते, यहाँ देवबंदी तुम पर FIR कराते। तो अपने ही बयान से झूठा होता है, कमीना निकलता है। तो यहाँ इसने ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि सारे बरेलवी जो है उनका अकीदा ये है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अहले सुन्नत बरेलवियों का अकीदा ये कि नबी इस्लाम कब्र में जिंदा है। ये झूठा शख्स है, ऐसे झूठों से आपने क्या करना है? बचना है। अब ये है इसमें देखिए, इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी मंजीत उतनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। रुको जरा, सबर करो। इसी दौरान में मुफ्ती राशिद रिजवी साहब से भी बात हुई, मुफ्ती साहब की भी बात हमारे सामने आई। अच्छा, वो एक अलग हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। मैंने मुफ्ती साहब से और उलमा कराम से, बहुत से लोगों ने इसको गलत प्रोपेगेट किया, उलमा घबरा जाते हैं इंजीनियर साहब से। इंजीनियर साहब कौन सी हवा है जो उनसे घबरा जाएंगे? अब ये है इसमें देखिए, इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इंप्रेशन बनाया हुआ ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी मंजीत उतनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। बहुत से लोगों ने इसको गलत प्रोपेगेट किया, उलमा घबरा जाते हैं इंजीनियर साहब से। इंजीनियर साहब कौन सी हवा है जो उनसे घबरा जाएंगे? और ये अगर लोग वीडियो सुनने के बावजूद गलत करें, सोचे रिवायात के साथ क्या करते होंगे, हदीस के साथ क्या करते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं